Dear shareholders, good afternoon and a very warm welcome to the 17th Annual General Meeting of HMA Agro Limited through video conferencing and other audio-visual facilities. For the smooth conduct of the meeting, the member will be in mute mode and audio and video will be unmuted when they will speak at the AGM as per the pre-registration. Please note that as per the requirement, the proceeding of the Annual General Meeting will be recorded and available on the website of the company. I now hand over the proceeding to Mr. Nikhil Sundarani, Company Secretary and Compliance Officer of HMA Agro Limited. Over to you, sir. Thank you. Dear shareholders, good afternoon. I, Nikhil Sundarani, Company Secretary and Compliance Officer of HMA Agro Industries Limited, extend a warm welcome to all the shareholders, directors, and esteemed guests present at the 17th Annual General Meeting of the company. It is a pleasure to host this meeting virtually via video conferencing and other audiovisual means in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Security and Exchange Board of India. I trust that all of you are in good health and safe. As the Chairman Sir has already taken the chair, I would request all the members to join the meeting through the portal, please. This AGM is being convened in accordance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and in compliance with the SEBI LODR Regulation 2015. The company has taken all feasible steps to enable the members to participate in this meeting through the video conferencing and to vote electronically. I would like to inform all the members that the requisite quorum is present, and accordingly the meeting is duly constituted in compliance with the provisions of Companies Act 2013 and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs. As this meeting is being conducted through video conferencing, the attendance has been recorded electronically. With the confirmed presence of the required number of members, we may now proceed with the business of the 17th Annual General Meeting. One by one, I will now introduce the Board of Directors and panelists. I would now like to take the opportunity to introduce the distinguished members of the Board of Directors and other key dignitaries who are present with us today or have joined this meeting through video conferencing. Starting with Mr. Gulzar Ahmed, Chairman and Whole-Time Director of the company. He is chairing the meeting from his office at New Delhi. With over 3 decades of his experience in livestock trading and meat export, Mr. Ahmed is a pivotal in overseeing plant operations and ensuring smooth functioning. He is the chairman of the Risk Management Committee and CSR Committee and a member of the Stakeholder Relationship Committee. Mohammad Mahmood Qureshi, Managing Director of the company. He is joining the meeting from his office at New Delhi. Mr. Qureshi brings over 30 years of expertise in livestock procurement and trading. He is a member of the Audit Committee, Stakeholder Relationship Committee, and Risk Management Committee. Mr. Gulzev Ahmed, who is the CFO, CEO, and Whole-Time Director. A dynamic and a young leader, Mr. Ahmed has played a crucial role in financial health of the company and its global operations. His leadership has driven significant improvements in the company's financial strategies and export operations. Coming on to our independent directors, Mr. Gaurav Rajan Luthra, Independent Director and Chairperson of the Audit Committee. CA Gaurav Rajan Luthra, a leading and a seasoned financial expert with over 20 years of experience of in-depth experience in the financial and investment landscape. He is currently a non-executive director at Purviraj Advisory Services Private Limited, a financial advisory firm. Additionally, he serves as an independent director at HMA Agro Industries Limited. He is joining the meeting from his office at Agra. Ms. Bhavna Jain, Independent Director and Chairperson of the Stakeholder Relationship Committee. Appointed to the board in May 2025, Ms. Jain is a chairperson of the Stakeholder Relationship Committee and a member of Audit Committee, NRC, Risk Management Committee, and CSR Committee. She brings strong compliance expertise under the Companies Act 2013. She is joining meeting from Gwalior. Mr. Abhishek Sharma, Independent Director of the committee. With over 25 years of experience in FMCG and telecom sectors, Mr. Sharma serves as a member of the Nomination and Remuneration Committee and CSR Committee, specializing in sales and distribution. He is joining meeting from Lucknow. We have also with us our distinguished auditors, Mr. Gyanchand Mishra, partner at Maps and Company, Chartered Accountants, statutory auditors joining us from Ghaziabad.
We have also with us Mr. Mohit Kumar representing Messrs. Archie Sharma and Associates, practicing company secretaries, joining today's meeting from Agra. Mr. Deependra Mohan, partner at Messrs. S.N. Gupta and Company, internal auditors, joining meeting from Agra. I now request our chairman, Mr. Gulzar Ahmed, to formally declare the meeting open so that we can proceed with the business of 17th annual general meeting. Over to you, Gulzar sir. प्रिय सम्मानित शेयरधारकों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। हमारी कंपनी की 17वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बैठक को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत और भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों तथा सेबी द्वारा जारी गाइडलाइनों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिए आयोजित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। कोरम की पुष्टि के साथ मैं इस बैठक को आधिकारिक रूप से प्रारंभ घोषित करता हूं। बैठक की सूचना और निदेशक की रिपोर्ट पहले ही सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है और इसे मान्य किया जाता है। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सम्मानीय सदस्यों का भी स्वागत करता हूं। इस बैठक का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है और एनसीए के दिशा निर्देश के अनुरूप इस प्रकार की भागीदारी को कोरम में सम्मानित किया जाएगा। कोरम की उपस्थिति के बाद मैं इस बैठक को आभार करता हूं। अब मैं कंपनी के सचिव और अनुपालन अधिकारी श्री निखिल सुंदरानी से निवेदन करता हूं कि वे इस बैठक में भाग लेने के संबंध में सदस्यों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद। Thank you, Gulzar. Now I will read out all the instructions for joining the AGM and as per the Companies Act 2013. Let me now provide a few instructions related to the conduct of this meeting. Dispatch of a notice and annual report. The notice of the 17th annual general meeting and annual report for the financial year ending 31st March 2025 has been sent electronically to all those members whose email IDs are registered with the company or depositories as per MCA and SEBI guidelines. For the members requiring physical copies or without registered emails, a physical copy has been provided. Participations in AGM. The facility to join AGM opened 30 minutes prior to scheduled time and will remain available for 15 minutes after the conclusion. VC is available for 1000 shareholders on first come first serve basis, except for large shareholders, promoters, institutional investors, directors, KMPs, committee chairpersons, and auditors. As per NCA guidelines, the appointment of proxy is not applicable for the meetings held via VC. Statutory registers and required documents under the Companies Act 2013 are available for electronic inspection. Member may email to cs@hmaagro.com for access. E-voting instructions in accordance with Section 108 of Companies Act 2013 and Regulation 44 of SEBI LODR regulations. The company has provided remote e-voting facility through NSDL. Remote e-voting commenced on 26th of August 2025 at 9 a.m. and concluded on 28th of August at 5 p.m. Members who have not voted through remote e-voting can now cast their votes via e-voting tab available during the meeting. Mr. Ramesh Chandra Sharma, Secretarial Auditor, has been appointed as a scrutinizer to oversee the e-voting process. Now, I would like to request our esteemed Chairman, Mr. Gulzar Ahmed, to kindly provide a brief update on the company's progress, address the shareholders, and lead the proceedings of this meeting. नमस्कार देवी और सज्जनों, अन्य निदेशक मंडल और आदरणीय शेयरधारकों, बड़े एहतराम और खुशी के साथ मैं आप सबका 17वीं वार्षिक आम बैठक में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये मौका सिर्फ आंकड़े और रिपोर्ट पेश करने का नहीं है, बल्कि हमारी अब तक की सफर पर गौर करने का और आपके भरोसे और साथ के लिए शुक्रिया अदा करने का और उस यकीन व साझी सोच का जश्न मनाने का है जिसने हमें हमेशा एक परिवार की तरह जोड़े रखा है। वित्तीय वर्ष
2024-2025 हमारे लिए एक अहम और यादगार अध्याय रहा। वैश्विक चुनौतियां और बदलते बाजार के बावजूद एचएमए एग्रो ने हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाए और बैफलो मीट इंडस्ट्री में अपनी नेतृत्वकारी स्थिति को और मजबूत किया। हमारी ये यात्रा सिर्फ नतीजों से नहीं जानी जाती, बल्कि उन उसूलों और केंद्रों से पहचानी जाती है जिस पर हम हमेशा चलते आए हैं। ईमानदारी, बेहतरीन गुणवत्ता, नियमों का पालन और ग्राहकों का भरोसा। आज जब हम अपने सुनहरे अतीत और उम्मीदों से भरे भविष्य के बीच खड़े हैं, तो आपके सामने बोलना मेरे लिए वाकई फक्र और सौभाग्य की बात है। आप सभी का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें बदलाव को अपनाने, तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने और एचएमए एग्रो को भारत की वैश्विक पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। ये बैठक हमें न केवल पिछले साल की कामयाबियों और प्रगति को आपसे साझा करने का मौका देती है, बल्कि आने वाले समय को लेकर आपसे एक सार्थक और गहरा संवाद करने का अवसर भी प्रदान करती है। हम सब मिलकर एचएमए एग्रो की उस कहानी को आगे लिखते हैं जो नवाचार, स्थिरता और तरक्की के नए वैश्विक आयाम स्थापित करती है। आइए वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। माननीय साथियों, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय कई उतार चढ़ाव से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार बदलती व्यापार नीतियों और बाजार की अनिश्चितताओं की वजह से साल 2025 में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बनी रहने का अंदेशा है। लेकिन कोविड महामारी और भू राजनीतिक हालात से आए लंबे व्यवधानों के बाद अब धीरे धीरे सुधार के आसार नजर आने लगे हैं। महंगाई में कुछ कमी दिखाई दे रही है और रोजगार के मौके भी धीरे धीरे महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंचने लगे हैं। भारत की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भी हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हालांकि तरक्की की रफ्तार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कुछ कम नजर आई है। रिजर्व बैंक ने इस साल की विकास दर का अनुमान 6.6% लगाया था, लेकिन शुरुआती 6 महीनों की धीमी रफ्तार को देखते हुए अब वास्तविक अनुमान लगभग 6.4% के आसपास है। इसके बावजूद भारत की मजबूत ग्रामीण खपत, बेहतर कृषि पैदावार, सेवाओं का फैलता हुआ दायरा और उच्च तकनीकी उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और सेमीकंडक्टर का बढ़ता निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को और भी मजबूत बनाता है। आगे की ओर देखें तो वर्ष 2025-2026 में भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अच्छे मानसून, स्थिर कीमतें, उद्योगों में मजबूती, शहरी खपत में इजाफा और सरकार के लगातार सुधार भारत की विकास यात्रा को और तेज करेंगे। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का विस्तार और तेजी से बढ़ता डिजिटलीकरण भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है। फिर भी कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना, वैश्विक व्यापार की बदलती परिस्थितियों का सामना करना और ऑटोमेशन से नौकरियों पर पड़ने वाले असर को संतुलित करना। वैश्विक मीट बाजार अवलोकन और भविष्य की संभावना है। साल 2025 में वैश्विक मीट उद्योग एक अहम मोड़ पर है। दुनिया भर में राजनीतिक बदलाव, आर्थिक उतार चढ़ाव और व्यापार से जुड़े नियम इस उद्योग को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। हर देश और क्षेत्र की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन इन तमाम फर्कों के बावजूद मीट आज भी दुनिया की आबादी के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। अरबों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मीट पर निर्भर करते हैं। बाजार की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 में प्रोसेसिंग मीट उद्योग यानी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बाद तैयार मीट का आकार लगभग 398.6 अरब अमरीकी डॉलर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 वर्षों में
इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी और 2035 तक इसका मूल्य लगभग 756.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। इसका तथ्य यह है कि ये उद्योग लगभग 6.7% की वार्षिक दर से प्रगति कर सकता है। इस संभावित वृद्धि के पीछे मुख्य कारण शहरी जीवन शैली का विस्तार, आय स्तर में सुधार और जल्दी तैयार होने वाले प्रोटीन युक्त भोजन की बढ़ती मांग हो सकती है। मुख्य रुझान जो इस विकास को बढ़ावा दे रहे हैं: सुविधा और तेज जीवन शैली। लोग रेडी टू ईट की मीट उत्पाद जैसे सॉसेस और हैम को पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी उपलब्ध, स्वास्थ्य और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। नई तकनीक है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग और वैल्यू पैकेजिंग जैसी तकनीकी से मीट की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ बेहतर हो रही है। सस्टेनेबिलिटी, विकसित देशों में उपभोक्ता पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदारियों से बने उत्पादकों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे कंपनियां टिकाऊ उत्पादन पर जोर दे रही हैं। भविष्य की संभावना है, आने वाले वक्त में मीट उद्योग में तेज बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनियां अब स्वास्थ्यवर्धक और साफ सुथरे उत्पादकों के निर्माण, नई तकनीक और शोध, आधुनिक पैकेजिंग और ऑटोमेशन, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए उत्पादन और परंपरागत मीट के साथ साथ पौधों से बने विकल्पों पर खास जोर दे रही है। इन तमाम कोशिशों के चलते वैश्विक मीट उद्योग उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतें के मुताबिक और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको भारतीय मीट उद्योग की स्थिति और उसके अवलोकन के बारे में बताना चाहूँगा। पशु उत्पादन भारत के सामाजिक और आर्थिक निजाम का अहम हिस्सा है। ये न केवल लाखों लोगों की आजीविका का जरिया है, बल्कि पूरे मुल्क की पोषण जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका अदा करता है। भारत दुनिया के अहम उत्पादकों में से एक है और यहाँ दूध, मीट और दूसरे खाद्य उत्पादकों की भरपूर विविध आपूर्ति मौजूद है। ये उत्पाद जहाँ एक तरफ लोगों को जरूरी प्रोटीन और पोषण तत्व देते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांवों की मईशत को मजबूत बनाते हुए रोजगार और आमदनी का सबब भी बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की फूड और मीट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती है और अब ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सेदारी बन गई है। साथ ही ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आमदनी देने वाला बड़ा जरिया भी साबित हो रहा है। हाल ही में IMF ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान वित्तीय वर्ष 25 के लिए घटाकर 6.5% कर दिया है, जो पहले के अनुमान में 0.5% कम है। इसकी मुख्य वजह सरकारी पूंजीगत खर्च और निवेश की गति में कमी बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के चलते नेट एक्सपोर्ट्स का योगदान सकारात्मक बना हुआ है। कंपनी का परिचय है, 2008 में स्थापित और भारत में स्थित HMA एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड आज विश्व की फूड एंड मीट इंडस्ट्री की अग्रिम कंपनियों में शुमार है। उच्च गुणवत्ता, टिकाऊपन और नवीनीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कंपनी प्रीमियम पैकेज मीट उत्पादकों की आपूर्ति कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करती है और वैश्विक स्तर पर भरोसा व पहचान हासिल कर चुकी है। आधुनिक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधा के साथ साथ HMA ने देश के सबसे बड़े हलाल बैफलो मीट निर्यातकों में से एक है और साथ ही कई प्रकार के कृषि उत्पादक भी वैश्विक बाजारों तक पहुंचाती है। कंपनी के प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध ब्रांड ब्लैक गोल्ड, फ्रेश गोल्ड और HMA गोल्ड आज 40 से ज़्यादा देशों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। ये ब्रांड अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले मीट और कृषि उत्पादकों की पहचान है, बल्कि भरोसे, बेहतरीन दर्जे और भारत निर्यात की ताकत की अलामत भी बन चुके हैं। समय के साथ HMA ने विशेष रूप से तैयार किए गए मीट उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की है, जो दुनिया भर के बड़े संस्थागत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें वैश्विक खाद्य उद्योग में गहरी पहचान और भरोसा दिलाया है। HMA
में हमारा मकसद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, हम नए आइडियाज, टिकाऊपन और सामाजिक जिम्मेदारी के अपने मूल्यों के साथ बेहतरीन और भरोसेमंद सेवा देने की कोशिश करते हैं। एक वफादार टीम और दूरदर्शी सोच के साथ हम आने वाले समय में अपने ग्लोबल विस्तार को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हमारी मुख्य ताकत हमारे खास बिजनेस मॉडल, लगातार गुणवत्ता पर ध्यान, तकनीकी महारत और लंबे अनुभव में है, जिसने हमें ग्लोबल खाद्य और मीट उद्योग में मजबूत पहचान दिलाई है। एचएमए का यकीन है कि गुणवत्ता की स्थिरता की बुनियाद है, और इसी सोच के साथ हमने हलाल रजिस्ट्रेशन, अपेडा, फसाई और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक मजबूत सिस्टम और जांच प्रक्रिया तैयार की है। वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारे एकीकृत संचालन, लगातार गुणवत्ता, मजबूत ग्राहक ताल्लुकात और नियमों की पूरी पालना ने हमें बेहतरीन प्रदर्शन करने और ग्लोबल बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा करते हुए लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ने में मदद की है। अब हम अपने वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य झलकियां पर विचार करें। हमारे वित्तीय प्रमुख अंकों की ओर बढ़ते हैं, और इस वर्ष हमारा रजत 51,330.17 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.64% की बढ़ोतरी दर्शाता है। हमारा एबिटा 1,834.94 और शुद्ध लाभ 876.91 मिलियन रहा। निर्यात की मात्रा 1,72,066.94 मैट्रिक टन तक पहुंच गई, और प्रति शेयर आय 1.75 रही। ये आंकड़े न केवल हमारी वित्तीय साझेदारी को दर्शाते हैं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर हमारे साझेदारों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे का भी सबूत है। आने वाले वर्षों के लिए हम एक परिवर्तनकारी दौर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा समय जो विकास की गति को और तेज करेगा, बाजार में हमारी मौजूदगी को मजबूत बनाएगा और सभी हितधारकों को और अधिक मूल्य प्रदान करेगा। आगामी वर्ष के लिए हमारी रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: ग्राहक बनाए रखना, बाजार में पैठ बनाना, बढ़ाना और भौगोलिक विस्तार। हमारा मुख्य ध्यान हमारे दीर्घकालिक ग्राहकों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर होगा। कई ग्राहक वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें हमारी विश्वसनीयता, सेवा की उत्कृष्टता और लगातार गुणवत्ता से आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ और उपलब्धियां साझा करना चाहूँगा। इस वर्ष कंपनी को सरकार द्वारा 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस श्रेणी में मान्यता प्राप्त हुई, जो हमारे लिए गर्व का एक अहम पल है। इसके अलावा हमारे निदेशक श्री गुलजेब अहमद ने मलेशिया की सेलेंगोर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण AMU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब अगर हम ESG और सामाजिक जिम्मेदारी CSR के कारणों की बात करें, तो हमारी कंपनी का बजट 27.44 मिलियन रुपए था, लेकिन हमने इससे भी अधिक यानी 29.72 मिलियन रुपए खर्च किए। कंपनी का मानना है कि समाज के विकास और तरक्की के लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी है, और इसी मकसद से वर्षों से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR का पालन करती आ रही है। CSR के तहत कंपनी ने सेहत और सफाई, शिक्षा, पर्यावरण की हिफाजत और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है। इन क्षेत्रों में कई गतिविधियां सीधे कंपनी द्वारा या विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए सफलतापूर्वक अंजाम दी गई है। इन सभी पहलों का विस्तृत ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में मौजूद है। हमने ये राशि समाज के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाई। शिक्षा के क्षेत्र में हमने वंचित बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, जिसमें ट्यूशन फीस और अन्य स्कूल से जुड़ी जरूरतें शामिल हैं। हमारी कोशिश रही कि कोई भी बच्चा पैसों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। हमने साइट सेवर्स इंडिया
नामक एक प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ मिलकर काम किया, जो अंध को रोकने और दिव्यांगजनों की मुख्य धारा को जोड़ने का कार्य करती है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए कंपनी ने संत सुंदर सेवा समिति को आर्थिक सहयोग दिया। उनके द्वारा एक वृद्धाश्रम और दृष्टिहीनों के लिए आवास की स्थापना की गई, जिसमें 365 बुजुर्गों और जरूरतमंदों की देखभाल की जा सके। हमने शहरों में पेड़ लगाने के अभियान चलाए ताकि हरियाली बढ़े, प्रदूषण कम हो और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोका जा सके। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने इफ्तेदार बानो फाउंडेशन ट्रस्ट को वित्तीय सहयोग दिया, जिसके माध्यम से नकलों के आईआईबी पब्लिक इंटर कॉलेज में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाया गया। पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंपनी ने अलीगढ़ के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में पोषण आहार के पैकेट विकसित किए। इसमें मूंगफली प्रोटीन से भरपूर, सत्तू ऊर्जा से भरपूर, पारंपरिक आहार और गुड़ आयरन और प्रगति ऊर्जा का स्रोत है शामिल थे। इन पैकेट से फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और मरीजों को सीधा लाभ मिलता है। इन सभी पहलों से न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव आया है, बल्कि कंपनी ने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम अपने विकास के साथ साथ समाज और पर्यावरण की भलाई में योगदान दे रहे हैं। निष्कर्ष। प्रिय साथियों, वर्ष 2024-25 हमारे लिए एक अहम साल रहा, जिसमें हमने मजबूती और लगातार कदमों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये सिर्फ हमारे प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि पूरे एचएमए परिवार, हमारे निदेशक मंडल, प्रबंधन टीम, कर्मचारियों, ग्राहकों, साझेदारों और सहयोगी संस्थाओं की एकजुटता और भरोसे का नतीजा है। आप सभी का योगदान और समर्थन ही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत है। आज मैंने आपको हमारी उपलब्धियों, प्रमुख पहल पर एक संक्षिप्त नज़ारा पेश किया है। आगे हमारे माननीय प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद महमूद कुरैशी आपको विस्तृत रूप से हमारे भविष्य की योजनाओं को, रणनीतियों को और आने वाले अवसरों से रूबरू कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मिलकर हम एचएमए एग्रो को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूती के साथ कायम करेंगे रखेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे एचएमए परिवार, हमारे कर्मचारियों, साझेदारों, ग्राहकों और सभी हितधारकों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मेहनत, भरोसा और सहयोग ही हमारी कामयाबी की असली ताकत है। आइए हम सब मिलकर एचएमए एग्रो को नई बुलंदियों तक पहुंचाएं और इसे एक मजबूत, स्थिर और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनी बनाएं। धन्यवाद। Thank you, Gulzar ji, for your kind and inspiring words. Now I invite Mohammad Mahmood Qureshi, Managing Director, to address the shareholders. सभी देवी और सज्जनों को मेरा सादर अभिवादन है। रेस्पेक्टेड शेयर होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स और मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी का एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सबका इस इम्पोर्टेंट मौके पर इकट्ठा हुए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके घर वाले सेफ एंड हेल्थी और खुशहाल रहें। यह हमारे लिए फख्र की बात है कि यहाँ एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज को अब तक आप शेयर होल्डर्स का भरोसा और सपोर्ट मिलता रहा है। यही ट्रस्ट हमारी तरक्की और कामयाबी की असली वजह है। खास बात यह है कि 4 जुलाई 2025 को हमारी कंपनी ने स्टेक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के पूरे 2 साल पूरे किए हैं। ये अचीवमेंट हमारी मेहनत, ट्रांसपेरेंसी और आप सबके भरोसे का नतीजा है। आज हम अपनी 17th एनुअल जनरल मीटिंग बना रहे हैं। ये हमारी कंपनी की ग्रोथ का एक नया गोल्डन चैप्टर है। मैं मोहम्मद महमूद कुरैशी, मैनेजिंग डायरेक्टर,
बोर्ड के तमाम मेंबर्स और पूरे एचएमए फैमिली की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपसे डायरेक्ट बात करने का मौका पाकर मैं बहुत गौरवमंद महसूस कर रहा हूं। आपकी मौजूदगी से ये मीटिंग और भी रोशन हो गई है। इस इवेंट को अपनी शिरकत से रोशन और गरिमामय बनाने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन श्री गुलजार अहमद का दिल से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की अहम कामयाबियाँ, अचीवमेंट्स और आंकड़े हमारे सामने पेश किए। उनकी ये इंसाइट्स हमारे फ्यूचर स्ट्रेटजी और नई अपॉर्चुनिटीज को समझने में बेहद मददगार साबित होते हैं। उनके नेतृत्व में सही दिशा और हौसला देती है, जिससे कंपनी और मजबूत और तरक्की पसंद बनती है। सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ, हमारा मानना है कि असली और टिकाऊ ग्रोथ तभी मुमकिन है जब हम अपनी ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज और बेटर फ्यूचर के विजन पर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाएं। आज मार्केट और दुनिया बहुत तेजी से बदल रहे हैं, चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में अकेले चलना पॉसिबल नहीं है, हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम ऐसा फ्यूचर बना रहे हैं जहां ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित न रहे, बल्कि सोसाइटी और आने वाली नस्लों पर पॉजिटिव असर छोड़े। हम अपने कस्टमर्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। हमारा यकीन सिर्फ तरक्की में नहीं, बल्कि ऐसे मैार पर है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, न्यू थिंकिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ को फरोग देते हैं। यह सफर इस बात का वाजह है सबूत है कि हम रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप के लिए पूरी तरह से वाबस्ता हैं। हमारा हर कदम, हर पेशकदमी हमें एक मजबूत, इंसाफ पसंद और रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है। अब मैं हमारी कंपनी के विजन, मिशन, प्रॉमिस, मूल्यों और कोर वैल्यूज के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा विजन है कि एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया का लीजेंड ग्लोबल फूड ऑर्गेनाइजेशन बने। हमारी पहचान क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एक्सीलेंस से होगी। हमारा टारगेट है कि हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करें और लगातार उन्हें क्रॉस करते हुए अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट दें। सस्टेनेबल ग्रोथ, ऑनेस्टी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फोकस करते हुए हम दुनिया के सबसे बड़े फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री में प्राउड इंडियन ब्रांड के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हमारा मिशन है कि एचएमए एग्रो ग्लोबल फूड इंडस्ट्री में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बने। हमारी इंस्पिरेशंस है इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी। हम ऐसे नए सॉल्यूशंस और एक्सपेरिमेंट्स लाना चाहते हैं जो मार्केट ने अभी तक एक्सपीरियंस न किए हों। इमेजिनेटिव थिंकिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने कस्टमर्स पर लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाहते हैं, ताकि उन्हें हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वैल्यू मिले। हमारा प्रॉमिस, हम ये वादा करते हैं कि हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपकी एक्सपेंशंस को पूरा करने के लिए हम पूरी मेहनत, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे। हमेशा आपको फास्ट और इफेक्टिव सर्विस देंगे। हमारे कोर वैल्यूज़, हमारी असली ताकत हमारे कोर वैल्यूज़ हैं। यही हमारी लीगेसी का बेस है और यही हमें पर्पस के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।
ये वैल्यूज हमें हर स्टेप पर गाइड करते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। हमारी खासियत, आवर स्ट्रेंथ, 2008 में एस्टेब्लिश हुई एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में अपनी फेमस प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए लगातार स्ट्रांग प्रेजेंस बनाई है। हमारे ट्रेडिंग ऑपरेशंस पूरे भारत में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। एचएमए ग्रुप पिछले 40 साल से ज्यादा वक्त से फ्रोजन मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के जरिए इंडिया की मीट इंडस्ट्री को नई हाइट्स तक ले जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हाई क्वालिटी पर लगातार फोकस की वजह से एचएमए ग्लोबल लेवल पर रिलायबिलिटी और एक्सीलेंस का सिंबल बन चुका है। हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। हमारी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है और लाखों जिंदगियों को टच करते हुए सोसाइटी में भी अहम रोल निभाते हैं। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और क्वालिटी कमिटमेंट की वजह से फाइनल ईयर 2025 में भारत सरकार ने हमें 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की रिकॉग्निशन दी है। आज एचएमए लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, जिसका पोर्टफोलियो है फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड, पेट फूड, राइस और लेदर प्रोडक्ट। हमारा एनुअल एक्सपोर्ट लगभग 46,830.93 मिलियन है और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। हम 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे लीडिंग ब्रांड्स ब्लैक गोल्ड, कामिल और एचएमए आज ग्लोबल लेवल पर ट्रस्ट और क्वालिटी के सिंबल माने जाते हैं। साल 2021 में डाइवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमने नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स लॉन्च किए। डार्लिंग पेट्स, पेट फूड, फ्रेश गोल्ड, फिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एचएमए गोल्ड राइस। हमारा अगला टारगेट है आने वाले वक्त में $1 बिलियन एक्सपोर्ट रेवेन्यू हासिल करना है। हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स, आज हमारी कंपनी इंडिया के 5 स्टेट्स में फैली 10 अल्ट्रा मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट्स चला रही हैं। इनमें शामिल हैं 6 इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, 1 सी फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, 1 पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 1 राइस मिल करनाल हरियाणा, 1 अंडर कंस्ट्रक्शन चिकन प्रोसेसिंग प्लांट जबलपुर एमपी और 1 लेदर प्रोसेसिंग यूनिट उन्नाव। हमारी सारी यूनिट्स HACCP, ISO, GMP और GHP जैसे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इससे हम अपने कस्टमर्स को सेफ, हाइजीनिक और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल कंज्यूमर पावर बन रहा है, एचएमए ग्रुप गर्व के साथ ब्रांड इंडिया की ताकत और कमिटमेंट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। हाइलाइट्स ऑफ फाइनल ईयर 2024-25। ग्लोबल रिकॉग्निशन, फाइनल ईयर 2024-25 में एचएमए एग्रो ने अपनी पहचान एक रिलायबल ग्लोबल सप्लायर के तौर पर और मजबूत की है। हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट के लिए आज हम 40 कंट्रीज में मौजूद हैं और हमेशा फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशंस और अपने कोर वी बिलीव इन क्वालिटी पर फोकस रखते हैं। भारत सरकार ने हमें 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की रिकॉग्निशन दी है। हमने इस साल भी अपने एडवांस्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग नेटवर्क्स और सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ सेफ, वायबल और अफोर्डेबल प्रोटीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। इस साल एचएमए ने मलेशिया गवर्नमेंट, श्रीनगर
मलेशिया के साथ एक अहम MOU साइन किया है। फ्रोजन प्रोडक्ट सप्लाई के जरिए ये पार्टनरशिप एक कॉमर्शियल कॉपरेशन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री चैलेंजेस को फेस करने के लिए जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स को भी आगे बढ़ाएगी। ये MOU हमारी इंटरनेशनल एक्सपेंशन जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन है, खासतौर पर मलेशिया और पूरे एशियन रीजन में। इसके अलावा ये इंडिया और मलेशिया की ग्रोइंग ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। फाइनल ईयर 2024-25 में हमने अपनी सब्सिडायरी HMA नेचुरल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मध्य प्रदेश जबलपुर में नया चिकन प्रोजेक्ट शुरू किया है। एनवायरमेंटल कमिटमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, हम लगातार एनर्जी एफिशिएंसी और ऑपरेशन एक्सीलेंस पर काम कर रहे हैं। पुरानी IE2 मोटर्स हटाकर पूरी तरह नई IE4 मोटर्स लगाई गई हैं। ये मोटर्स एनर्जी कंजप्शन कम करती हैं और एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। HMA एग्रो ने अलीगढ़ प्रोसेसिंग प्लांट में लगभग 17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके मॉडर्न रेंडरिंग कुकर इंस्टॉल किया है। इसका मकसद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। सोशल एंगल से भी ये इन्वेस्टमेंट वर्क प्लेस को और ज़्यादा क्लीन और सेफ बनाता है। ब्रांडिंग कुकर इन्वेस्टमेंट्स से बैड स्मेल कम होती है और हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं। इससे न सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ को फायदा है, बल्कि आसपास की कम्युनिटीज भी सेफ रहती है। यूनिट्स में एडवांस चिलिंग और फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी लगाई गई है। प्लेट फ्रीजर्स और ब्लास्ट फ्रीजर, इनसे प्रोडक्ट जल्दी ठंडे होते हैं, एनर्जी कंजप्शन घटती है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। उत्सर्जन कंट्रोल, इमिशन कंट्रोल, HMA मानता है कि क्लाइमेट चेंज आज की सबसे बड़ी चैलेंज है, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस अपनाए। रेट्रोफिट इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के जरिए कार्बन फुटप्रिंट कम किया। हमारा मकसद सिर्फ ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाना नहीं है, बल्कि एक पाक साफ और पायदार मुस्तकबिल में हिस्सेदारी निभाना है। शासन में बेहतरी, गवर्नमेंट एक्सीलेंस, HMA हमेशा ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स पर आधारित गवर्नेंस सिस्टम अपनाता है। बोर्ड का नजरिया, हमारे लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस सिर्फ एक नियम पालन नहीं, बल्कि हमारी कोर वैल्यू है। हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स में इंतजामी और गैर इंतजामी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल हैं। हमारे बोर्ड डिफरेंट एक्सपीरियंस और न्यू विजन के साथ फैसले लेता है। ये स्ट्रक्चर यकीनी बनाता है कि हर फैसला सोच समझकर और जिम्मेदारी से लिया जाए। बिजनेस एथिक्स, HMA का मकसद हमेशा हॉनेस्टी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है। करप्शन, फ्रॉड या किसी भी तरह का अनएथिकल एक्टिविटी के लिए हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस है। एम्प्लॉय वेलफेयर, कर्मचारियों की भलाई और तरक्की, HMA हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई और तरक्की पर खास तवज्जो देता है। उन्हें कैरियर ग्रोथ के मौके, ट्रेनिंग और उन्नति का साफ रास्ता दिया जाता है। वर्क प्लेस पर हर शख्स के साथ बराबरी और इज्जत से पेश आया जाता है। कंपनी एक सेहतमंद, महफूज और पॉजिटिव माहौल देती है, ताकि एम्प्लॉयज़ हौसले और एतमाद के साथ अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, फाइनल ईयर 2025 में केयर एज रेटिंग ने HMA को
A2+ रेटिंग दी, जो हमारी माली अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ऑपरेशनल काबिलियत कैपेबिलिटी को साबित करता है। हम हमेशा वक्त पर और मुकम्मल जानकारी शेयर होल्डर्स और एडिटर्स को प्रोवाइड करते हैं। डिविडेंड अनाउंसमेंट, लाभांश का ऐलान। ये मेरे लिए बड़े फख्र का मौका है कि हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 अगस्त 2025 को अपनी मीटिंग में एक अहम फैसला लिया। इस मीटिंग में तय हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रति इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹1 पर 0.30 यानी 30% फाइनल डिविडेंड अदा करेगी। ये डिविडेंड आप सबकी मंजूरी अप्रूवल के लिए आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग AGM में पेश किया जाएगा और AGM से मंजूरी मिलते ही 30 दिन के अंदर एलिजिबल शेयर होल्डर्स को यह अदा कर दिया जाएगा। ये कदम हमारी मजबूत माली पोजीशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और आप सब शेयर होल्डर्स के प्रति हमारी शुक्रगुजारी को दिखाता है। मुझे असल में फख्र है कि आपकी कंपनी मुसलसल तरक्की कर रही है और उसका फायदा सीधे अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचा रही है। आगे की राह। वित्त वर्ष 2025-26 हमारे लिए माली फाइनेंशियल एतबार से चैलेंजिंग रहा, लेकिन ये साल हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और इंतजामी काबिलियत, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। इस दौरान हमने वो बुनियाद फाउंडेशन रखी है जिस पर आने वाले वक्त का विकास और तरक्की यकीनी होगी। जैसे ही हम फाइनल ईयर 2025-26 में दाखिल हुए, हमारे सामने नई राहें हैं, मौके और वादों से भरी हुई है। नए बाजारों में एक्सपेंशन, प्रोडक्शन क्षमता को और बढ़ाना, अपने ब्रांड को और मजबूत बनाना हमारी अहम स्ट्रेटजी नहीं है। इनसे हम आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत पोजीशन में आ चुके हैं। इस पूरी सफर में आपका ट्रस्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत और हौसला रहा है, जिसने हमारी दिशा और कामयाबी को शक्ल दी है। आगे भी हम एक ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए कमिटेड हैं जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और पायदार हो। आखिर में मैं अपनी पूरी HMA एग्रो इंडस्ट्रीज टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनत, लगन और जज्बा हमारी कामयाबी के असली रहनुमा रहे हैं। साथ ही मैं अपने शेयर होल्डर्स को उनके सपोर्ट्स के लिए दिल से कहता हूँ। आपके भरोसे और ताउन के साथ हम HMA एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड का एक रोशन और ब्राइट एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर बनाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, Mamuji, for your sharing your valuable insights. Now I would like to invite Mr. Gulzeb Ahmed, CFO and Full-Time Director, to provide an overview on the company's financial performance. Over to you, Gulzeb ji. Thank you, Nikhil. A very wonderful afternoon to ladies, gentlemen, and all our board members and dear shareholders. It is my privilege to address today's 17th annual general meeting of HMA Agro Industries Limited with our respected chairman and our wonderful managing director, Mr. Gulzar Ahmad and Mr. Mahmood Qureshi. I would like to welcome all present today's meeting. And as we have already have an overview about our company performance and our future planning, vision and mission, we have received a very wonderful, clear path from our chairman Saab and our managing director Saab. As a chief financial officer, it is my responsibility to give you an overview about the financial performance of the company for year 2025, 31st March. I would like to give you a brief about the financial performance of year 2024 to 2025. As we all know,
the year was challenging as the global situation was not so stable. There are challenges also, and we got the good opportunities also. Uh, as the transportation in this year was a biggest challenge due to the disruption in the ocean routes. Although with a great trust of our all buyers, all our stakeholders, all our service partner, HMA has delivered uh, a wonderful deliveries for their product. As we talk about the standalone performance, the revenue from operations is 48,621 million rupees, which if we compare from the last year was 46,650 millions approx for the last year. And this make us a growth of 4.2% on year. And the PBT for this year was 908 million Indian rupees, reflecting the resilience of our business model. Earning per share stood for 1.2 rupees, and the total asset extension was 16,137 millions. If I give you the overview for the consolidated performance, the consolidated revenue was 51,330 million rupees, and against the last year, it was 48,132.9 million for the last year. And the consolidated growth, which we have made for this year, is 6.65%. And the total PBT for consolidated was 1,256 million Indian rupees, and EPS is 1.75 per equity share. I would also like to give you a brief about the first quarter, which is finished for financial 2026. And the standalone revenue was 10,884.9 million Indian rupees. And I'm really glad to inform you that this is 57% growth of Y on Y, quarter one for last year. Last year, the revenue for quarter one was 6,939.4 million rupees, and this has grown with 57% for this quarter. If we talk about the EBITDA improvement, the EBITDA for this quarter is 179.06 million rupees compared to last quarter of same last year. It's 104.8 million last year. The PAT increase in this quarter is 71.7 million, which was first quarter of last year was 24.6 million. And the consolidated base revenue, if I give you, is 11,226 million rupees, while the PAT was consolidated is 5.9 million Indian rupees. I would also like to give you a strategic initiatives, business expansion was we have made for this financial year. As it is a pleasure for us to inform all our stakeholder, HMA, what we promised you in last year, we have already taken our one golden step. HMA has got the approval from for Latin American countries, which is called Cuba. This is the first step for entering in the Latin America, which is one of the biggest market for the protein. So finally, we have secured the approval to supply in Cuba in the Latin America, and this will definitely bring us a strong growth or strong sales or strong demand for our product. We have made a MOU. This MOU is basically for strategic relationship between our company and the Selangor government, where we can analyze the increasing demand and availability of the product. With this MOU, with the help of government people, we will be unable to assist the growing demand, so we can cater it and serve them in a better way all the time.
Also, I would like to inform you, as we have achieved these two steps, we already secured a five-star export house status for our company, as our chairman and managing director also mentioned this in their speech. So we are really proud to become one of the highest category of this export house for the country. Also, if we talk about to cater the growing changes in the industry or globally, company is totally focused on the taking care for the quality requirement globally. We are recently got awarded with one of the highest quality certificate in the food industry, which is called BRC GS, and one of our plant has already got certified with this standard, which will bring us more confident from the global buyers. Also, we are taking a good energy efficiencies, or we are taking care of the environment perspectives also. So we are putting LED lights in all our processing facilities, where we can save energy and also environment, and we this will also help us to reduce the energy requirement, and also help us to make cost efficiency. I would like to give you a brief about the road map ahead for financial year 2026. As we already got a very good clientele for our this financial year, so our strategy with our team and with the guidance of our senior management, we would be retaining all the customers which we have bring, and which help us to grow our revenue. So we will be retaining all old customer, and also as we got the approval from Philippines market for all our plants, so we are going to tab a new customers from Philippine market also, and also when we have a stronghold in any country, so this will also bring us the customer which is not yet buying from us. So they already have seen our product, their competitor have our product. So definitely they will also come to us, and this will bring us a good growth. And all these facts, what I share with you here, we believe what is our target to be a $1 billion export revenue company, or a $1 billion revenue company. We hope, uh, touch wood, we will be going to achieve it very soon, or sooner than our target date. With this, I would not like to take much of your time, and we really thanks you all to participate in our AGM and to give us chance to present you all. And we really, really from our deep from our heart, we thanks to all our stakeholders, our team members, our senior management to show trust in our company, and we are working hard with your positive beliefs. We will be growing and growing. And as I always quote in my statements or in my speech, food is the business which will definitely bring you the growth. And we are getting the trust from almost 40 countries, and it's increasing day by day, our clientele. So we are on a very good growth path. Your trust, your push will make this company grow, grow, and grow. Thank you, everyone. Thanks for your time, for your patience. I would like to hand over to Mr. Nikhil to take up the meeting further. Thank you, everyone. Thank you, Gulzebji, for sharing the detailed financial insight with us and for your inspiring words. As the annual report has already been circulated, which contains the auditor's report as well, and auditor's report as well has already been circulated, it may be taken as read. I now request Gyanchand Mishra, our statutory auditors, to read the auditor's report. Over to you, Gyanchand. Thank you so much, Nikhil ji. Very respected chairman
and full-time director, Injar sir, managing directors and other board of directors members, and shareholders and all other stakeholders. Good afternoon to one and all. I am auditor of the company, and we would like to confirm that there are no modifications or qualifications in the auditor's report on both the standalone and consolidated financial statements for the financial year 24-25. As the report has already been circulated to the members, it shall be taken as read. Thank you all for kind attention. Thank you, Gyan sir. Now I would like to brief the shareholders about the resolutions which are being put before shareholders for their approval. There are 6 resolutions in the notice to be approved by the shareholders at the 17th AGM. First resolution is relating to consideration and adoption of audited standalone and consolidated financial statements for the financial year 2024-25 by passing an ordinary resolution. Second resolution is regarding the declaration of final dividend of rupees 0.30 paisa per equity share. Per equity share on face value of rupees 1 each by passing an ordinary resolution. Third resolution is regarding appointment of Mr. Gulzeb Ahmed as a director liable to retire by rotation and being eligible offers himself for reappointment by passing an ordinary resolution. Fourth resolution is regarding appointment of Messrs. Archie Sharma and Associates, practicing company secretaries, secretarial auditor of the company for the term of 5 consecutive years commencing from financial year 2025-26 till financial year 2029-30 by passing an ordinary resolution. Fifth resolution is regarding approval of material related party transactions in accordance with Regulation 23(4) of Securities and Exchange Board of India LODR regulation by passing an ordinary resolution. Sixth resolution is regarding appointment of Ms. Bhavna Jain as a non-executive independent director of a company by passing a special resolution. Speaker registration and question and answer session. We have received speaker registration requests from certain members. Once directed by the chairman, the floor will be opened for these shareholders. Each speaker will be allowed a maximum of 2 questions. Any remaining queries may be emailed to cs@hmaagro.com and we will respond accordingly. We will now proceed to interaction with the shareholders who have registered themselves as a speaker, shareholders for today's meeting. These members may now raise their queries or share their views. The moderator will facilitate this session. We kindly request all registered speakers to keep their questions concise and to point to ensure a smooth discussion. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we begin with the question and answer session. We will wait for a moment while a question queue assembles. Our first speaker shareholder, Mr. Manjeet Singh. Mr. Manjeet would like to ask the question on audio mode. So we have given you a prompt. Please unmute your audio and ask your question. Hanji, my audible? Yes, sir. HMA एग्रो की मैनेजमेंट टीम, सेक्रेटरियल टीम और माय को शेयर होल्डर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जिस तरह से आपने अपने रिमार्क्स के अंदर हमें कंपनी के बारे में विस्तार से बताया कि कंपनी का कार्य क्या है, कंपनी की एक्सपोर्ट क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या हैं, उससे हमें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम चला। सर, ये जो हमने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ जो समझौता किया था, वहाँ से किस तरह के रेवेन्यू आ रहे हैं और फ्यूचर में हमारा किस तरह से वहाँ एक्सपोर्ट चलता रहेगा, थोड़ा आप इस बारे में हमें बताएंगे तो हमें और नॉलेज होएगी। वर्ल्ड सिनेरियो और हिंदुस्तान में जो जीएसटी स्लैब का जो कुछ 4 स्लैब थे पहले और उनको 2 स्लैब में बदलने का जो सुझाव चल रहा है, इम्प्लीमेंट शायद 2 या 3 महीने में होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी कंपनी पर, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट पर, हमारे रेवेन्यू पर और हमारा जो मेन है अर्निंग पर शेयर ईपीएस पर उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा
थोड़ा आप इस बारे में अगर हमें बताएंगे तो कंपनी के बारे में हमें और अच्छा पता चलेगा। विदेश में जिस तरह से अमेरिका के अंदर टैरिफ नियम का जो नया पालन शुरू हुआ है, उससे हमारा बिजनेस कुछ प्रभावित। There seems to be some network issue with Mr. Manjeet. Mr. Manjeet, can you? Mr. Manjeet, can you please speak? I think there is some network issue with Mr. Manjeet. Can we move to the next speaker shareholder? Yeah, so you can. Okay, our next speaker shareholder is Mr. Praveen Kumar. So please unmute your audio and ask your question. Sir, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. A very, very good afternoon to my respected chairperson, respected MD, respected board of director, my fellow shareholder, myself, Praveen Kumar, joining this meeting from New Delhi. Few observations which I love to share with the entire house. Sir, but before that, in this financial year, this is our first interaction online with the management. So I wish the entire management team, each and every dedicated employee of our company, a happy, healthy, and prosperous future. Coming down to my observation, sir, respected chairperson, respected MD, and our young, dynamic CFO for your very, very in-depth address to the shareholder. Sir, I'm with the company since IPO, and I have the deepest respect for the entire management team. I truly salute your dedication, devotion to bring sustainable growth for a retail investor like me on a sustainable basis. That's the wonder of our company. And now, as per your speech, we are entering South America. It's a huge market. God bless you for all the success and all the plan that our company is becoming $1 billion company. My best wishes is always there for you. As far as the question is concerned, sir, due respect to my earlier speaker, there are a couple of questions he asked. I don't repeat them, but yes, one more, one thing which I love to address here on this platform, our respected CS and his entire team is doing fantabulous job, sir. As far as the communication is concerned, I mean that's something truly boosts our morale as far as our investment in the company is concerned, sir. Mark my word, even during the course of year, if you have any update about the company or any queries, that will be promptly replied. So he is the biggest asset we have as far as the communication is concerned, maintaining higher standard of corporate governance. At the end, sir, I just pray to the God that He will bless you with all the positivity so that you will keep the momentum of creating sustainable value creation for a retail investor like me. Thank you for this opportunity. God bless you. Wish you all the luck and all the best. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Praveen ji, for your wonderful words, your understanding, your support for the company. Thank you. Thank you, sir. Our next speaker shareholder is Mr. Lokesh Gupta. So please accept the prompt on your screen, unmute your audio and ask सर, आप your मुझे question. सुन पा रहे हैं? जी सर। चेयरमैन सर, मैं दिल्ली से लोकेश गुप्ता आपका सभी बोर्ड मेंबर्स का स्वागत करता हूं। सर, एक्सीलेंट चेयरमैन स्पीच हो रही थी जिसमें कंपनी के वर्तमान और भविष्य के बारे में आपने बताया। उसके बाद कर कुछ सवाल बचते नहीं है सर। सवाल होते भी वहां हैं जहां सर विश्वास और भरोसा ना हो। आप पर भरोसा है, विश्वास है, जो भी निर्णय कंपनी के बारे में आपने पहले लिए आगे लेंगे, वो कंपनी के हित में पहले भी थे और आगे भी रहेंगे सर। सर, आपने सारा रोड मैप हमें बता दिया है, कुछ पूछने को रहा ही नहीं। उसके बाद हमारे सीएफओ सर ने सब कुछ बता दिया है। सर, मैं हम 1 घंटे आपसे जुड़ते हैं, आधे घंटे आपसे जुड़ते हैं, लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी सर, उनकी पूरी टीम की मेहनत लगती है सर एक शानदार बैलेंस शीट बनाने में और हमें आपसे जोड़ने में। उसके लिए भी मैं उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, मुझे 1 या 2 साल में हम अपने जो रेवेन्यू है, अपने मार्जिन है, वो किस तरह इंक्रीज करेंगे, थोड़ा इस बारे में बताइए सर। बाकी सर, मैं इस एक रेनी सीजन में हम आपसे जुड़ पा रहे हैं तो ये संभव हो पाया है सर एक बीसी मीटिंग के कारण। सर, इसी पोर्टल पर एजीएम कीजिए जिससे पेन इंडिया के शेयर होल्डर आपसे जुड़ पाए। अंत में मैं कंपनी के सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं सर। धन्यवाद सर। Thank you, Lokesh ji. Thank you, sir. Our next speaker shareholder is Mr. Murlidhar Talreja. So please unmute your audio and proceed with your question. हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? जी 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 सर। जी आ रही है। चेयरमैन और डायरेक्टर और कंपनी के डायरेक्टर और सब शेयर होल्डरों को मुरलीधर का नमस्कार दिल्ली से।
चेयरमैन की स्पीच में मेरे सब डाउट दूर हो गए हैं। आपकी और आपकी स्टाफ की मेहनत से कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारी कंपनी खूब तरक्की करती रहे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमें बोलने का मौका दिया हुआ। पर सर एक है कि हमारे को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से कहीं से भी फोन नहीं आया कि आपका इस ये नंबर है। कोशिश करें कि हमारे को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से भी हमारे से कोई बात हो जो शेयर होल्डर के नज़दीक रहता है। थैंक यू और धन्यवाद। आपको आने वाले त्योहारों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Our next speaker is Mr. Tony Bhatia. So please unmute your audio and proceed with your question. So Tony, please unmute your audio. Yes. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. You're audible. Thank you, Chairman Saab. Thank you, respected Chairman Saab, Board of Directors, and my co-friends. I hope you won't mind my speaking in Hindi, Chairman Saab. सबसे पहले तो आपने एमडी साहब ने और ईडी साहब सीईओ सीएफओ गुलजेब भाई ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, अपना बताया कंपनी के बारे में। सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी कंपनी हैव गॉट ए ब्राइट फ्यूचर एंड कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई एम हैप्पी टू नोट दैट आवर कंपनी गॉट 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड। इसके लिए भी मैं सर आप सबकी पूरे बोर्ड की सभी की तारीफ करूंगा कि हमारी कंपनी को 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का अवार्ड मिला है, मिल गया है। और मलेशिया में जो एग्रीमेंट हुआ, एमओयू साइन हुआ, इसके लिए भी मैं गुलजेब भाई का और पूरे बोर्ड का, चेयरमैन साहब सबको मुबारकबाद देता हूं इस नए एग्रीमेंट के लिए भी। मुझे पूरी उम्मीद है कंपनी आगे भी इससे भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी। Now I'm coming to the points. Under the leadership of our chairman, MD ED Gulzeb Ahmed ji, and staff at all levels, company is doing well and will give us further best results. Sir, quality के बारे में, in this regard, I will say, कभी quality पे compromise नहीं करना. At HMA Agro Industries, we move beyond boundaries, becoming food safety trust, partner building trust, and staying rooted in our promises of क्वालिटी। क्वालिटी इज अवर फर्स्ट माटो, कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। और क्वालिटी सर्टिफिकेट मिले हमारी कंपनी को, पेज नंबर 14 पे आपने जैसे दिया, एंड यू सेड इन योर स्पीच आल्सो, इसके लिए भी मैं आपकी तारीफ करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा साइन है। एचएमए एग्रो, मैंने आपने बैलेंस शीट में बताया, स्पीच में भी बताया, इज 40 कंट्रीज में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं और 5 कॉन्टिनेंट्स में हो रहे हैं। ये वियतनाम वगैरह, वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। सच ए गुड साइन। आप कंट्री के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है। इसके लिए मैं फिर आप सबको मुबारकबाद दूंगा। आप हमारे एमडी साहब ने कहा एम्प्लॉइज के लिए, उनके लिए भी कि हम एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। आप एम्प्लॉइज का ध्यान रखते हो, एम्प्लॉइज इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हैं, और जिसका रिजल्ट आज कंपनी कहां से कहां वो ले जा रहे हैं, इन सब के लिए मैं तारीफ करूंगा आप सबको। यस सर, अवर रिपोर्ट वाज साइंड ऑन 28th में, मतलब 29th में, बट आप मीटिंग सर आप कर रहे हैं 29 अगस्त को। सर हो सके तो थोड़ा इसे प्रीपोन कीजिए अगर पॉसिबल हो। आज दिल्ली में हालांकि हैं सब वर्चुअल, 10-12 मीटिंग सराउंडिंग एरिया में एनसीआर में है, तो हो सके थोड़ा इसे प्रीपोन कीजिए। चेयरमैन साहब, आपसे 2 साल पहले आप सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। आगरा में जेपी होटल में गुलजेब भाई आप सब मिले, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें मान सत्कार प्यार दिया। अगर पॉसिबल हो फिजिकल मीटिंग का सोचना, अगर हो तो सर आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा। बाकी चेयरमैन साहब, ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर मैं सर आपका, पूरे बोर्ड का, सब एम्प्लॉइज का जो इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद देता हूं। लिंक और बैलेंस शीट के लिए मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी जी को शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे वेल इन टाइम, निखिल जी वेल इन टाइम बैलेंस शीट भेजी और लिंक भेजा। उनके लिए मैं रियली आई एम थैंकफुल टू निखिल जी एंड गुलजेब भाई आल्सो। गुलजेब भाई जो हैं इस कंपनी के एक पिलर हैं। रेजोल्यूशन नंबर 3 उनका है, उसको मैं स्ट्रांगली, आई आल्सो ऑल्दो आई सपोर्ट ऑल द रेजोल्यूशंस,
But I support strongly resolution number 3 of Gulzeb Bhai. He is one of the pillar of this company. बाकी ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा. Corporate governance, that is also you have shown in such a good manner. For this, credit goes to our CFO, ED Gulzeb Bhai and Nikhil ji. बाकी CSR एक्टिविटीज पे आई फॉरगेट CSR एक्टिविटीज पे आपने काफी ध्यान दिया है, या जैसा कि पेज नंबर 56 पे कहा है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ईच एंड एवरी आइटम, लेकिन मैं इसमें भी आपकी तारीफ करूंगा. हमारे प्रधानमंत्री जी भी CSR एक्टिविटीज पे जोर दे रहे हैं और आपने उसमें अहम रोल निभाया है. बाकी ज्यादा वक्त ना लेते हुए चेयरमैन साहब, with these words, once again I support and seconded the balance sheet. God bless you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you, Thank Tony ji. you very much, sir. Our last speaker, shareholder, Mr. Gaurav Paliwal. So please unmute your audio and proceed with your question. Gaurav, sir, you can proceed with your question. Yes, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Good evening, everyone. First of all, congratulations to Chairman and Whole-time Director, sir, for a wonderful speech. And me being a shareholder since IPO, so I'm hopeful that whatever speech sir has given, it will take company to the great height in the coming times. I have a few questions. एक तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें आपका जो ऑपरेटिंग इनकम से प्रॉफिट में शेयर है वो काफी कम है कंपेयर टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो उसको कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे अपने कोर ऑपरेशंस को इन द कमिंग टाइम. दूसरा, आपकी डिविडेंड पॉलिसी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, किस तरह का डिविडेंड वी कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर. और आई थिंक ये बाकी तो मेरे से पहले जो भी स्पीकर शेयर होल्डर्स रहे हैं उन्होंने इशू रेज कर दिए हैं. स्पेशली ये जो अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ को लेके चल रहा है उसमें किस तरह से वो कंपनी को इम्पैक्ट करता है, ये सब मेरे क्वेश्चंस हैं. थैंक यू. Thank you, Gaurav ji. Thank you, sir. So it was the last speaker, shareholder. Over to you. Thank you. I would like to address the question. Firstly, I would like to address Manjeet ji. As Manjeet ji asked about the Malaysia, what this agreement will bring us. As we know, Malaysia is always a very strong and very good destination for all our product. So it will definitely bring us the business, because once you have a strategic partnership with any government level, you have a good inside information, market data, and market trend from the country. So you can plan your product and plan your pricing to cater a good market in a certain destination. वर्चुअल एजीएम के फॉर्मेट देख लो ऐसे अटेंड करके. And also, I would like to talk a little bit about the GST, as it was raised by there. We have a wonderful policy for exporter in India. Anyone who paid GST, our respected government already returned the GST. So either it is in 2 ways or it is in 4 ways. It will not impact exporter on that. On that, it is not have that strong impact on GST. We thanks our government for a wonderful policy for the exporter where we can claim back our GST. And there was a question regarding communication number from Murlidhar. Mr. Murlidhar ji, we really respect your trust, your love with our company and your concern with our company. We have a dedicated email address and where you can write anytime, and we hope that you are receiving all the communication related to the company on your registered email. And we always welcome emails. We avoid the direct phone calls. Email will give us a more insight and a more elaborate idea regarding your queries. And Praveen Kumar ji, Lokesh Gupta ji has also appreciated ourselves. We really thanks them for their trust in our company, and we will definitely keep your trust. We will definitely grow with your prayers, with our team hard work. And Tony ji, as you talk about the quality, and we are really thankful for your concern that you are socially, directly, and strongly mentally attached with the company.
you are caring about our product, you're caring about our uh, company performance. This really gave us a huge motivation. We focus on very strongly on our product quality service. So we are taking care, at most taking care of our quality to satisfy our all customer demands and requirement. Regarding the date of AGM, we have your suggestion, and we hope we will be able to try this next year as early as possible. And Gaurav Paliwal ji also have a question regarding to the US tariff. Currently, India is not a direct market for our product to US, so we don't see any impact of tariff on our side. And the tariff is still in negotiation stage, so the impact from another country is also need to be taken care. We hope this tariff will bring big business to India, because when they are putting to tariff on each another countries, it will definitely increase the prices of good. In India, we have a good pricing for our product, so this will bring us business definitely. Thank you all the people who present today, who ask question, and we hope we will be able to deliver the good reply for your queries. Over to you, Mr. Nikhil. Yeah, thank you, Guljab for answering all the shareholders and wishing them all the best for the future. Now, I believe that we have addressed all the questions and queries raised by the shareholders. Still, if any member has any queries regarding the same, they can email to the registered email ID to the company secretary. Okay. Scrutinizer appointment and declaration of the results. Mr. Ramesh Chan Sharma, proprietor of RC Sharma and Associates and practicing company secretary, has been appointed as a scrutinizer to oversee the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting facility will remain open for next 15 minutes after the closure of this meeting for the members who have not yet cast their votes. On receipt of the report from the scrutinizer, the consolidated results of the remote e-voting and e-voting conducted during the AGM will be published on company's website and will also be submitted to stock exchanges. And in accordance with the applicable provisions of Companies Act 2013 and SEBI LODR regulation within 2 working days from the conclusion of the meeting. As all the items of the business as a part of AGM have been taken up, I propose a vote of thanks to the chair, and also I like to thank all the shareholders for fully engaging in the proceedings of this virtual meeting. On behalf of the Board of Directors and the management of HMA Agro Industries Limited, I extend our heartfelt gratitude to our chairman, Mr. Gulzar Ahmed, for ably leading the meeting and for sharing his wisdom and vision, which continue to guide the company's growth. Our Managing Director, Mohammad Mahmood Qureshi, and our CFO and Full-Time Director, Mr. Gulzar Ahmedji, for their insightful and encouraging addresses. All the members of the board for their continuous guidance, support, and commitment to the company. Our statutory auditors, secretarial auditors, registrar and share transfer agents, and NSDL for their cooperation and facilitating of e-voting process. And our esteemed shareholders for your invaluable trust, active participation, and encouragement which inspire us to perform better year after year. I also wish to place on record our deep appreciation for the dedicated efforts of our accounts team, export team, staff at all our plant locations, and executives at the head office, whose tireless contributions have ensured not only the smooth functioning of the company but also the seamless organization of today's annual general meeting. With the collective support of all stakeholders, I am happy to share that this year we are able to conduct our annual general meeting well before the time, a reflection of the efficiency, dedication, and teamwork that define HMA Agro Industries Limited. Once again, I extend my heartfelt thanks to each one of you for your presence, support, and encouragement. With your continued cooperation, we look forward to achieve greater milestones in the year ahead. With these words of gratitude, I now formally conclude the proceedings of 17th Annual General Meeting of the company. Thank you once again for joining us. Please stay safe, healthy, and we look forward to connecting with you again at the next AGM.
Thank you. Again, for your information, the e-voting facility will remain open for next 15 minutes for the members who have not cast their votes. Thank you.